Good morning, children. Today we are going to start a new chapter of geography, that is physical features of India. So what does it mean? Physical features means, as all of you know, that in whole part of our country, we find different types of landform. Somewhere we find mountain, somewhere we find river, somewhere we find plain area, and somewhere we find the desert area, right? That means the land is not uniform. Everywhere it is different. So in this topic, we are going to read about which type of landforms we can find in India, in which part we can find desert, in which part we can find plain, in which part we can find mountain, right? So basically we will talk about that, what is the physical features of landforms and how the Indian landforms are divided, right? Okay, so these are the major physical divisions of India. You can look at here this picture. In this map, you will find that in the north part of our country, this is Himalayan range, right? So यहाँ पर क्या है? Himalayan mountain है. Then we have a certain northern plain, right? उसके बाद यहाँ पर हमारा इंडियन डेजर्ट है, दैट इज थार डेजर्ट, ये वाला पार्ट राजस्थान वाला और गुजरात वाला पार्ट. Then we have Deccan Plateau in the southern part of our country, right? ये वाला पार्ट देखो, ये डेक्कन प्लेट्यू है. देन हमारा ये वेस्टर्न घाट और ये कोस्टल प्लेन है, राइट? दिस इज कोस्टल प्लेन, दैट मींस नियर द कोस्ट. कोस्ट का मतलब क्या होता है? समुद्र के पास वाला लैंडफॉर्म, इसको कोस्ट बोला जाता है, राइट? सो दिस इज कोस्टल प्लेन. एंड देन आवर आइलैंड, we have two islands, Lakshadweep and Andaman and Nicobar Island. So if we summarize this one, we can say that India can be physically divided in 6 parts, right? The first one is Himalayan mountain, second one is Northern Plain, Peninsular Plateau, Indian Desert, Coastal Plain, and the island. Okay, so we will discuss each one of them in the coming lecture, right? So first we will talk about the Himalayan mountain. So let me show you the Himalayan mountain. दिखने में कैसा लगता है हम पहले देखेंगे, ठीक है? उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे. So look at this video carefully, right? So you can see these are the rivers you can find in Himalayan region, right? And these rivers are passing through the valley, right? And this type of vegetation you can find in Himalayan region. And there are so many mountains are present in this Himalayan range. So you can look at here, these are the valleys which is cut through by the river water, right? पानी की force की वजह से ये सारे rivers कटे हैं, right? And this type of thinly, that means population बहुत कम होता है, लोगों का घर काफी दूर दूर होता है, पहाड़ी पर होता है, right? And then such type of peaks you can find there. इतना ऊंचा ऊंचा peaks आपको मिलेगा, ठीक है? ये हमारा माउंटेन एवरेस्ट है. ओके, एंड दीज आर द एरिया यू कैन सी, ये सारे स्नो कवर्ड एरिया है. माउंटेन के टॉप पर इस तरह का स्नो मिलता है देखने को. सो यू कैन सी द हाइट, कि क्लाउड तक इसकी हाइट होती है. हमारा जो क्लाउड है वहां तक ये ऊंचा होता है, और जितना भी पार्ट पे स्नो होता है वहां पर इस तरह के व्हाइट व्हाइट माउंटेन आपको देखने को मिलेंगे, राइट? Okay, so let's move to the slide. Before we move to the slides, I want to show you one another video.
which is showing that how Himalayas were formed, right? So let me show you. Before you look at this video, all of you know that you should know that the earth surface is moving, right? हमारा जो earth surface है वो move कर रहा है, ठीक है? I will not go in much detail, right? आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, you know कि अर्थ के अंदर हमारे अर्थ सरफेस के अंदर लावा होता है and the surface of earth are floating on the lava, right? So look at this video and I will explain also during this video how these Himalayas were formed, right? Okay. So this is our earth and you can see here these are the continents of earth and these are moving, right? अर्थ सरफेस क्या हो रहा है, मूव हो रहा है. दिस इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट विच इज मूविंग टुवर्ड्स द यूरोपियन सब कॉन्टिनेंट, राइट? यूरोपियन कॉन्टिनेंट, ऊपर यूरोप है, यू नो, रसिया वाला पार्ट. अभी देखो ये इसमें टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा, दिस टाइप ऑफ माउंटेन्स आर फॉर्म्ड, राइट? सो आज भी ये दोनों प्लेट आपस में मूव कर रही है. जब ये प्लेट टकराती है तो माउंटेन्स जो है वो फॉर्म होता है, राइट? सो दिस इज हाउ हिमालयास वर फॉर्म्ड, राइट? And these Himalayas formed recently, right? इसलिए इसको यंग माउंटेन भी कहा जाता है. ओके, अब वापस से आते हैं, देखते हैं कैसे हिमालय को कैसे हम डिवाइड करेंगे वो हम देखते हैं पहले, राइट? सो पहले हिमालयस के बारे में कुछ जानते हैं एंड द फर्स्ट थिंग यू शुड नो दैट हिमालयस इज अ यंग माउंटेन, राइट? यंग मीन्स इसको फॉर्म होने से बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है, राइट? कंपेरिजन टू द अदर माउंटेन. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फोल्ड माउंटेन. ये जो है फोल्ड माउंटेन कहा जाता है क्योंकि जब दो प्लेट टकराती हैं, राइट, तो इस तरह का माउंटेन होता है, मुड़ा हुआ, राइट? दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ फोल्ड माउंटेन ऑल्सो, राइट? दिस माउंटेन रेंज जो है, ये हिमालयन माउंटेन रेंज जो है, ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जाती है. सो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, यहाँ है वेस्ट हमारा पंजाब वाला रीजन. ये हिमालयन माउंटेन पूरे इंडिया के नदर्न बॉर्डर पर ईस्ट की तरफ जाती है फ्रॉम वेस्ट. दिस माउंटेन इज अ बैरियर टू द इंडिया, राइट? इंडिया के बॉर्डर पर ये एक बैरियर का काम करता है, ठीक है? ये काफी रगड माउंटेन है, इसका जो सरफेस है बिल्कुल यू कैन से काफी ज्यादा खुरदरा है और सबसे ऊंची पहाड़ी यहाँ पर मिलती है. पूरे वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट हाईएस्ट पीक है वो यहीं पर अवेलेबल है, दैट इज, यू नो, माउंट एवरेस्ट. हिमालयन रेंज में ही पाया जाता है. ये लगभग 2400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है. इफ यू मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट तो ये आपको टोटल डिस्टेंस कितना मिलेगा, 2400 किलोमीटर. इसकी जो विड्थ है, जो मोटाई है, राइट, ये लगभग कितना है, 150 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर, ठीक है? अलग अलग जगह पर अलग अलग वैरी करती है. माउंटेन रेंज की जो चौड़ाई है मैं आपको दिखाता हूँ, विड्थ किसको बोलते हैं. ओके, सो यू कैन लुक एट हियर दिस विड्थ, दैट मीन्स ये वाला लंबाई अगर आप यहाँ से यहाँ अगर मापोगे तो ये 150 से 400 किलोमीटर होता है अलग अलग जगह पर. कहीं पर 150 किलोमीटर आपको मिलेगा, कहीं पर 400 किलोमीटर मिलेगा. अगर आप इसकी लंबाई मापोगे, लेंथ मापोगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये कितना होगा, लगभग 2400 किलोमीटर, राइट? देन ओके, सो नेक्स्ट इज इसका जो एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस हैं. एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस मतलब देखो, माउंटेन रेंज में कई सारे माउंटेन्स होते हैं. कोई माउंटेन बहुत छोटा होता है, कोई माउंटेन बहुत बड़ा होता है, राइट? सो ये जो वेरिएशंस हैं, कुछ का हाइट कम होता है, कुछ का हाइट ज्यादा होता है. ये वेरिएशंस ज्यादा कहाँ पर देखने को मिलते हैं, ईस्टर्न हाफ में देखने को ज्यादा मिलते हैं, राइट? जो हमारा ईस्ट साइड है, ये वाला साइड, इधर वाला साइड, यहाँ पर इस तरह के वेरिएशंस ज्यादा देखने को मिलते हैं कंपेरिजन टू द वेस्टर्न साइड, right? Okay, coming to the next point, this Himalayan mountain we can divide in 3 parallel ranges, right? Mountain range का मतलब होता है a series of mountain. कई सारे माउंटेन अगर एक साथ हो जाए तो उसको माउंटेन रेंज बोलते हैं.
जो हिमालयन माउंटेन रेंजेस हैं ये 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइडेड हैं, राइट। सबसे पहला जो हमारा रेंज है उसको बोलते हैं हिमाद्री और द ग्रेट हिमालय और द इनर हिमालयस, ठीक है। सो ये वाला पार्ट आप देखो, ये वाला, ये जो आप लाइट ब्लू कलर में ये पार्ट देख रहे हो, दीज आर द हिमालयस which is called Himadri or the Great Himalaya or the Inner Himalayas. So these Himalayas range having a very high average height, ठीक है। यहाँ पर जो माउंटेन्स होते हैं इसके जो हाइट होती है वो काफी ज्यादा ऊंची होती है। अप्रोक्सीमेटली एवरेज हाइट यहाँ का 6000 मीटर है, दैट मीन्स 6 किलोमीटर की माउंटेन्स यहाँ पर आपको एवरेजली मिलेंगी, राइट। अमॉन्ग देम यू नो कि माउंटेन एवरेस्ट भी एक माउंटेन है जिसकी जो ऊंचाई है वो लगभग कितना है 8448 मीटर, राइट। देन इस रेंज में कई सारे ऊंचे ऊंचे पिक्स मिलते हैं, राइट। कई सारे प्रोमिनेंट पिक्स मिलते हैं, आपको नाम भी मैं बताऊंगा कौन कौन सा हिमालयन पिक्स आपको देखने को मिलेंगे। इसका जो माउंटेन होता है वो एसिमेट्रिकल होता है। एसिमेट्रिकल का मतलब होता है, देखो यहाँ पर these two are the example of asymmetrical mountains, ठीक है। इसमें देखो ये जो बीच वाला एक्सिस है, ठीक है, एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम है ना, एक तरफ कम है एक तरफ ज्यादा है। सिमेट्रिक, हम उसको सिमेट्रिक माउंटेन उसको बोलते हैं जहां पर कि बिल्कुल सीधा खड़ा हो, थोड़ा सा भी टेढ़ा नहीं हो, उसको हम सिमेट्रिक माउंटेन्स बोलते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा हो माउंटेन तो उसको हम एसिमेट्रिक माउंटेन्स बोलते हैं, राइट। तो जो इसका कोर वाला एरिया है, ठीक है, ये जो पार्ट है, जो बीच वाला नीचे वाला जो पार्ट है, ये किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट से बना हुआ है, राइट। एंड यहाँ पर हमेशा सालों भर स्नो देखने को मिलेगा आपको पीक के ऊपर, क्योंकि इसकी हाइट इतना ज्यादा है कि यहाँ पर हमेशा ठंड होती है और ठंड होने की वजह से यहाँ पर जो स्नो होता है वो स्नो कवर्ड माउंटेन्स मिलते हैं, राइट। सो यहाँ पर कई सारे ग्लेशियर्स भी हैं। ग्लेशियर्स का मतलब यू नो दिस इज द होम ऑफ आइस, राइट, ठीक है। सो देयर आर सो मेनी रिवर्स कमिंग आउट फ्रॉम दिस ग्लेशियर्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल गंगा कमिंग फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी निकलता है, और जब वो पानी निकलता है तो वो क्या बन जाता है, रिवर बन जाता है, राइट। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट वन। So you should remember that this is north to south division of Himalaya, right? So north to south, मैं यहाँ पर हिमालय को कैसे डिवाइड कर रहा हूँ, north to south. You can look at here. This is northern part, this is southern part. उसके बाद ये मिडिल वाला पार्ट, ठीक है। So north to south मैं डिवाइड कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान में रखना। Next is our लेसर हिमालय और हिमाचल, राइट। So this is the middle part. देखो ये वाला रेड वाला पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज द मिडिल हिमालय, यू कैन से, बीच वाला पार्ट है। इसको हम हिमाचल के नाम से भी जानते हैं और लेसर हिमालयस के नाम से भी जानते हैं, राइट। सो दिस हिमालयस आर कंपोज्ड ऑफ अल्टर्ड रॉक्स। यू कैन सी हियर द अल्टर्ड रॉक्स कैसा होता है देखने में। यहाँ का जो सरफेस है बिल्कुल रफ होता है, राइट। यहाँ का सरफेस सॉफ्ट नहीं होता है, ठीक है। सो कई बार आपने देखा होगा अपने आसपास भी कई सारे रॉक्स जो होते हैं बाहर से बिल्कुल यू कैन प्लेन होते हैं, राइट और नॉट। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ का जो रॉक्स है ये बिल्कुल सरफेस जो है काफी खुरदरा होता है, राइट। इसका जो एवरेज विड्थ है यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है ये कितना है, एवरेज 50 किलोमीटर। सम ऑफ द फेमस रेंज आर प्रेजेंट हियर इन दिस लेसर हिमालय। कौन कौन सा है, पीर पंजाल है, धौलाधार है, महाभारत रेंज, दीज आर द पिक्स यू कैन फाइंड हियर, राइट। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे आपको फेमस वैली भी देखने को मिलेंगे, जैसे कश्मीर, यू नो कश्मीर का नाम आपने सुना है। कश्मीर में जो लोग रहते हैं वो इसी रीजन में रहते हैं, कश्मीर वैली हो गया, कांगड़ा, कुल्लू वैली, ठीक है। सो ये सारे जो वैलीज हैं ये कहाँ पर मिलते हैं, हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं। एंड दिस इज वेरी मच फेमस, दिस रीजन इज वेरी मच फेमस फॉर द हिल स्टेशन। सो गर्मी में छुट्टी बिताने के लिए लोग यहाँ पर जाते हैं, right? Okay, now we will talk about the next part, that is the शिवालिक रेंज, right? हमारा जो तीसरा पार्ट है वो कौन सा है, शिवालिक रेंज। देखते हैं शिवालिक रेंज के बारे में। ये जो है हमारा सदर्न मोस्ट पार्ट है हिमालय का, और ऑब्वियस सी बात है कि जैसे ही हम नॉर्थ टू साउथ मूव करते हैं हिमालयन रेंज की हाइट रिड्यूस होती है।
सबसे ज्यादा हाइट कौन सा होगा? सबसे ऊपर वाले पार्ट का, दैट मीन्स ग्रेटर हिमालयाज का, राइट। उसके बाद उससे कम हाइट किसका होगा? लेसर हिमालयाज का। उससे भी कम हाइट किसका होगा? शिवालिक रेंज का। सो एक और पार्ट होता है ट्रांस हिमालयन रेंज। यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट, इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना क्योंकि ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ, राइट। ओके, सो द आउटर मोस्ट रेंज, द आउटर मोस्ट रेंज, हिमालय का जो आउटर मोस्ट रेंज है इसको हम क्या बोलते हैं? शिवालिक बोलते हैं। एल्टीट्यूड जो इसकी ऊंचाई है, जो हाइट है, वो कितना वेरी करता है? अप्रोक्सीमेटली 900 टू 1100 मीटर्स। एंड दीज आर द माउंटेन विच इज कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स, ठीक है। सो यू विल फाइंड हियर कि कई छोटे छोटे भी आपको रॉक्स मिलेंगे देखने को यहाँ पर, ठीक है। छोटे छोटे रॉक्स मिलेंगे, थिक ग्रेवल, इसको हम ग्रेवल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, और यहाँ पर जो माउंटेन के बीच में कई सारे गैप्स भी होते हैं, राइट। जब इस तरह का आपको पत्थर अगर आप जमा कर दोगे तो बीच में क्या होगा? गैप्स भी देखने को मिलेगी। एंड इसी रीजन में आपको कई सारे दून्स देखने को मिलते हैं। दून्स मतलब द प्लेस बिटवीन द माउंटेन्स, राइट। माउंटेन के बीच के जगह पर जहां पर रहने की लायक जगह, उसको दून्स बोला जाता है। सो आपको कहीं पर अपने नाम भी सुना होगा कई सारे दून्स का, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, राइट। सो दीज आर द दून्स विच इज फाउंड इन द शिवालिक रेंज ऑफ इंडियन माउंटेन system, that means Himalayan mountain system, right? Okay, so today we are done with the divisions of Himalayas, right? Now look at here, these are the heights showing of Himalaya, right? That means कहाँ पर कितना हाइट है, यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, आप इसको ध्यान से देखो। 7000 है ना, 6500, ये हाइट्स दिया हुआ है। कलर देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर जो माउंटेन्स मिलते हैं उसके एवरेज हाइट्स कितने हैं? 5500 है ना। कुछ कुछ माउंटेन्स आपको जो इस कलर में मिलेंगे, ये वाला कलर में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, दिस इज हियर माउंट एवरेस्ट। यहाँ पर आपको जो बड़ी बड़ी पिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये कलर, पिंक कलर देखो इधर सबसे लास्ट में है, क्यों? क्योंकि इसकी हाइट छोटी है। इसका जो एवरेज हाइट है वो कितना है? 1000 to 1500 मीटर्स। सो यू कैन इजिली चेक ऑन दैट, राइट। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना। एंड थैंक यू फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू आवर क्लास फॉर टुमारो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।